Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9 standard maths, class 10 standard maths. My target is to finish off this 9th standard maths as well as 10th standard maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for basic maths also. Now this basic maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. बेसिक मैथ्स फॉर ऑल पार्ट 28 में आपका स्वागत है बच्चों. इसके अंदर हम पार्ट 2 लेने जा रहे हैं. पार्ट 1 के अंदर हमने केवल एरियाज के बारे में बात की. आज हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे. तो वॉल्यूम पहला जो पार्ट था उसका सेकंड पार्ट से क्या रिश्ता है वो हम आपको बताएंगे. और जब भी बच्चों से मैं पूछता हूँ कि भाई कौन सा टॉपिक हार्ड है, तो ये एक टॉपिक उसके अंदर होता है उनके लिस्ट के अंदर. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते हैं. वैसे समय बच्चों को मैं सलाह देता हूँ कि आपको जो आता है उसी को आप इस नए फॉर्मूले से जोड़ दीजिए. आप बोलोगे सर कैसे हो सकता है, सर हमको जो आता है वो नए से कैसे जोड़ेंगे, फिर नया कहाँ से रहा. बच्चों वो नया नहीं है, वो पुराना है, उसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया है. तो क्या एक्स्ट्रा किया है मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बताते चले जाऊँगा. फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड की जब बात आती है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. देखिए बच्चों, आप एक पेपर ले लीजिए और आप पेपर लोगे तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ. पेपर के ऊपर पेपर, 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 पेपर के ऊपर पेपर. तो पेपर के ऊपर पेपर अगर जमता चला जाएगा तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा, यानी हाइट हो जाएगा. बेस्ट एग्जांपल मैं आपकी किताब बता दूं. किताब का पहला पन्ना खोलोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और पूरा किताब लोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा. हाँ सर, आप समझ में आ गया, हमको तो ये पता था, मुझे भी पता है कि आपको पता है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए, वॉल्यूम मिलेगा. नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को कैसे याद रखते हैं सर? मान लीजिए ये आपका किताब है, 9th स्टैंडर्ड की आपकी किताब है. टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है किताब का ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, लेफ्ट राइट वाला सरफेस, लेफ्ट वाला सरफेस, सामने वाला सरफेस, बैक वाला सरफेस, यानी टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक. यानी ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी बार है बच्चों? 2 बार है.
नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारा ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 बार आता है। फिर आता है तुम्हारा हाइट इंटू लेंथ आता है 2 बार, यानी सारा 2 बार आता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि एक क्यूबॉइड के अंदर ऊपर एक रेक्टेंगल, नीचे एक रेक्टेंगल, राइट में एक रेक्टेंगल, लेफ्ट में एक रेक्टेंगल, सामने एक रेक्टेंगल और पीछे एक रेक्टेंगल। तो इन सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ दीजिए तो आपको सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होगा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स यानी 4 दीवारी का एरिया। बच्चे बगैर समझे रटना शुरू करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट एच इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। अरे क्यों ऐसा परेशान होते हो? आपको ये हमने जो पता था वहाँ से पता करवाया, ये आपको समझ में आ गया कि क्यूबॉइड के अंदर ऊपर एक रेक्टेंगल होता है, नीचे एक रेक्टेंगल होता है, सामने एक रेक्टेंगल होता है, पीछे एक रेक्टेंगल होता है, लेफ्ट में एक रेक्टेंगल होता है, राइट में एक रेक्टेंगल होता है। 4 वॉल्स की बात करेंगे बच्चों तो 4 वॉल्स का मतलब होता है 4 दीवार। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऊपर वाला और लेंथ इंटू ब्रेड्थ नीचे वाला गायब। सर इतना सिंपल है? हाँ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ को गायब कर दीजिए आप। तो 2 इंटू ब्रैकेट ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ कीजिए। हाइट कॉमन ले लिया अगर आपने तो 2 इंटू हाइट इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मिला रेक्टेंगल से, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मिला रेक्टेंगल से, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको मैंने बताया कि ऊपर और नीचे का माइनस कर दो। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला आपको क्यूबॉइड से मिल जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों? क्यूब का मतलब होता है जिसके अंदर लेंथ भी सेम होता है, ब्रेड्थ भी सेम होता है, हाइट भी सेम होता है। यानी लेंथ के बराबर होता है, ब्रेड्थ भी लेंथ के बराबर होता है और लेंथ भी लेंथ के हाइट भी लेंथ के बराबर होता है। यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, या कभी कभी इसको एड्ज क्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्ज क्यूब भी कहा जाता है, या कुछ किताबों में उसको ए क्यूब भी कहा जाता है अगर ए है तो। टोटल सरफेस क्यूब के लिए क्या करोगे? क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करना है। लेंथ की जगह लेंथ लिखोगे, लेंथ की जगह ब्रेड्थ की जगह भी लेंथ लिखोगे, ब्रेड्थ की जगह भी लेंथ लिखोगे, हाइट की जगह भी लेंथ लिखोगे, हाइट की जगह भी लेंथ लिखोगे, लेंथ की जगह लेंथ लिखोगे। यानी क्या हो गया? यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी 2 इंटू ब्रैकेट 3l स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 6l स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। कितना सिंपल है देखो, जो आप जानते हो उसी से हमने इतने सारे फॉर्मूले बनाए। अब ये मत कहना कि सर हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता नहीं था सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ पता है आपको, तो कल ही बताया मैंने मेरे प्रीवियस क्लास के अंदर। उसको सिर्फ हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल सरफेस एरिया हमको पता नहीं था सर, अरे टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर रेक्टेंगल, नीचे रेक्टेंगल, सामने रेक्टेंगल, पीछे रेक्टेंगल, लेफ्ट रेक्टेंगल, राइट रेक्टेंगल, दैट्स ऑल। सबको प्लस कर दो। 4 वॉल सर हटा दीजिए ऊपर और नीचे को। नेक्स्ट आता है क्यूब। क्यूब की जगह क्यूब में क्या होता है? ब्रेड्थ भी लेंथ के बराबर है, हाइट भी लेंथ के बराबर है, यानी लेंथ क्यूब होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए क्या करोगे आप? जहां पर भी ब्रेड्थ और लेंथ है वहां पर आप एल रख दोगे, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूले को जेब में रखे घूमिए, फॉर्मूले को बायहार्ट मत कीजिए। अब इसमें से कोई भी फॉर्मूला मैंने बायहार्ट नहीं किया, और सारे फॉर्मूले को जो आप जानते थे उसके साथ जोड़ दिया। फ्रॉम वॉट यू नो आई हैव लिंक्ड इट टू वॉट यू शुड नो। What you know is linked with what you should know. That's very simple. जो आपको पता होना चाहिए उसको हमने जो पता है उससे लिंक कर दिया। अब नेक्स्ट आता है सर सिलेंडर की बात आती है। तो बच्चों सिलेंडर की बात आती है तो सिलेंडर बोलते ही मुझे एक बात ध्यान में आ जाता है, सिलेंडर का मतलब होता है ऐसे गोल होता है। सिलेंडर बोलते ही मुझे सर्कल याद आता है। अब ये मत कहना सर एरिया ऑफ सर्कल हमको पता नहीं, मैंने बताया आपको। ये कभी नहीं कहोगे सर एरिया ऑफ सर्कल पता नहीं, पता है। एक सर्कल रखोगे बच्चों तो वो सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर सर्कल, 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 सर्कल के ऊपर सर्कल। सर बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे। पापड़ का पैकेट देखा है आपने? हाँ, एक पापड़ लोगे तो सर्कल होगा, मगर सर्कल के ऊपर सर्कल करोगे तो हाइट आ जाएगा। यानी वहां पर क्या हो गया? एक पापड़ का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 10 पापड़ होंगे तो 10 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, या फिर हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, या पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आप देखिए सिलेंडर के लिए याद क्या रखोगे? सरकमफ्रेंस साचा। ये तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला आप क्या करोगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच।
पाई आर स्क्वायर एच। सर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या होता है? ये जैसे मान लीजिए मेरा ये शर्ट है, दैट इज कॉल्ड एज, ये हाथ जो है मेरा कर्ड सरफेस है। सर कर्ड सरफेस एरिया क्या करेंगे? कर्ड सरफेस एरिया के लिए सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, जैसे आपने वॉल्यूम के लिए निकाला एरिया ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट, वैसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एक पापड़ के ऊपर, दूसरा पापड़ के ऊपर, तीसरा पापड़ के ऊपर, चौथा पापड़ के ऊपर, तो अब देखिए ये पूरा पापड़ का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी क्या होगा बच्चों? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर एच। सर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सिंपल है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सिलेंडर का पूरा। जैसे आप लीजिए, मान लीजिए शटल कॉक का, आपने शटल कॉक आप तो खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते कि नहीं बैडमिंटन? तो बैडमिंटन के अंदर बच्चों वो कॉक रखने के लिए जो बॉक्स होता है, बॉक्स के अगर दोनों जगह को आप बंद कर दोगे तो वो क्लोज्ड बॉक्स हो जाएगा, वो क्लोज्ड सिलेंडर होगा। दोनों खोल दोगे तो वो केवल सिलेंडर होगा। तो मान लीजिए दोनों जोड़ देंगे तो यानी क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। कर्ड सरफेस एरिया तो आप जानते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कितना बताया आपको मैंने? 2 पाई आर एच। यानी क्या होगा? कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। यानी क्या होगा बच्चों? कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 2 पाई आर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया बच्चों, तो कर्ड सरफेस एरिया एच प्लस कितना बचेगा यहाँ पर? एच प्लस आर बचेगा। तो हमने क्या किया? कर्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच है, फिर 2 सर्कल का एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर। बच्चे क्या करते हैं? बिना समझे रटते रहते हैं, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर। क्या ज़रूरत है उसकी? कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हो? 2 पाई आर इन प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आज जो भी नए फॉर्मूले मैंने आपको बताए, उन नए फॉर्मूले का रिश्ता कहीं ना कहीं पुराने फॉर्मूले के साथ था। वॉट एवर न्यू फॉर्मूलाज आई हैव टॉट, इट हैज़ द रिलेशन विद द ओल्ड फॉर्मूलेज। So if I take cuboid, length into breadth is area of a rectangle, so I can say that area of a cuboid is area of a rectangle into height. Total surface of a cuboid, area of 3 rectangles, up down, front back, left right. Area of 4 walls, length and breadth should be deleted. Cube के लिए क्या करना है? Wherever b is there, go on putting L. Wherever height is there, go on putting this one. We'll get this one. Total surface area के लिए क्या करना है? Again substitute b as L. You will get this one. Then for cylinder, what you should do? Curved surface area of a cylinder, consider one circle 2 pi r, area 2 pi r. If you multiply by height, it will be 2 pi r multiplied by height. The best example is the papad. One papad is 2 pi r, 10 papads are 10 into 2 pi r. Here is total surface area of a cylinder. If I want curved surface area plus area of the top circle plus area of the bottom circle. Here curved surface area is how much? 2 pi r h plus 2 pi r square. So 2 pi r I have taken common, h plus r. Now if I want volume of a cylinder, volume of a cylinder is very simple. One circle area if you take multiplied by height, area of a circle, you know it already so pi r square h. So what I want to tell you my dear children is, whatever formulas we are learning, link it with what you know. Link what you don't know to what you know, then definitely things will be easy. Instead of mugging it up, याद करने की कोशिश करोगे बगैर समझे तो दिक्कत में होगा। अगर आप समझ के करने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है हमने आज जानबूझ के थोड़ा छोटा एपिसोड ले रखा है, फिर और हम नया एपिसोड के साथ कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे।